میں اور امیر حمزہ پاکستان پہنچ گئے تھے۔ برطانیہ سے عارضی میک اپ اور فرضی ناموں سے سفر کیا۔ پھر پاکستان پہنچتے ہی حمزہ نے بذریعہ فون نیک بخت سے کہا، میں یہاں آ گیا ہوں، تم نے انیلا کو اغوا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے پاس صرف انیلا ہی تمہارے خلاف ایک مہرہ نہیں ہے، تمہارے جیسے کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف میرے پاس بہت سے دستاویزی ثبوت ہیں۔ اب میں رفتہ رفتہ تمہاری کرپشن کا پٹارا کھولتا رہوں گا اور تمہاری انتخابی مہم کو ناکام بناتا رہوں گا۔ نیک بخت نے کہا، تو تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے، انیلا کی موت کی خبر سننا چاہتے ہو؟ حمزہ نے کہا، کیا میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں اور پاکستان کبھی نہ آؤں اور تمہارے خلاف کوئی بات نہ کروں تو انیلا مجھے لندن میں مل جائے گی۔ نیک بخت بولا، تم اتنی بڑی عقل مندی کا ثبوت دو گے تو انیلا تمہیں ضرور واپس ملے گی۔ حمزہ نے کہا، مجھے یقین نہیں ہے کہ تم نے انیلا کو زندہ چھوڑا ہوگا۔ میں لندن جاؤں گا تو خفیہ ایجنسی والے میرے پیچھے ہوں گے اور کہیں بھی مجھے ٹریپ کرنا چاہیں گے۔ بہرحال میں اپنے مخالفین سے نمٹنا جانتا ہوں، کسی بھی فلائٹ سے لندن واپس جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ انیلا زندہ ہے۔ نیک بخت نے کہا، لندن جاؤ گے تو اسے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حمزہ نے پوچھا، لندن جانے سے پہلے اس سے فون پر بات کر سکتا ہوں؟ فون پر تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ حمزہ نے پوچھا، کیا ہو گیا، خاموش کیوں ہو؟ وہ بولا، فون پر انیلا سے بات کروائی جا سکتی ہے لیکن 1 گھنٹے بعد فون کرو۔ حمزہ صاحب نے فون بند کر کے مجھے کہا، وہ چاہتا تو 15 یا 20 منٹ میں انیلا سے میری بات کروا سکتا تھا، لیکن وہ 1 گھنٹے کے بعد انیلا سے بات کروائے گا۔ تم بتاؤ کہ ہمارا رابطہ کروانے کے لیے وہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا، میری سمجھ میں سیدھی سی بات آتی ہے کہ پہلے وہ اپنے سیاسی سرپرست خفیہ ہاتھ سے اس سلسلے میں بات کرے گا، اگر خفیہ ہاتھ نے اسے اجازت دی تو وہ انیلا سے بات کروائے گا۔ امیر حمزہ نے کہا، فی الحال یہی بات میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، 1 گھنٹے کے بعد جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اسی وقت میرے موبائل فون پر امی نے کہا، تم نے مجھے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی، میں اس وقت ایک آپریشن میں مصروف تھی۔ آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد یہاں اسپتال میں تمہارا پیغام ملا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے شمشیر سنگھ کالیا سے انتقام لے لیا اور اسے اپاہج بنا کر زندہ چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں اسی طرح امیر حمزہ کے ساتھ رہ کر طرح طرح کے آزمائشی حالات سے گزر کر ذہانت، حاضر دماغی اور فوری حکمت عملی کے تجربات سیکھنے ہیں۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے روبرو آؤں گی، تم یہاں نہیں آؤ گے، میں تمہارے پاس کراچی آؤں گی۔ پھر امی نے حمزہ صاحب سے باتیں کی، ان سے بھی یہی کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر جان لیوا تجربات کی آگ میں تپا کر کندن بنائیں۔ لاہور میں ان کی کچھ اہم مصروفیات ہیں، ان سے فارغ ہو کر وہ 1-2 دن کے لیے کراچی آئیں گی۔ 1 گھنٹے بعد حمزہ صاحب نے فون پر نیک بخت سے کہا، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، کیا انیلا سے بات کرواؤ گے؟ وہ بولا، ہاں، وہ لندن میں ہے، اس کا فون نمبر نوٹ کرو، اس سے بات کرنے کے بعد مجھ سے ضرور گفتگو کرنا، میری ذات سے تمہیں بہت سے فائدے پہنچیں گے۔ اس نے فون نمبر بتایا۔ حمزہ صاحب نے کہا، نیک بخت، ایک طوائف اپنا جسم دینے سے پہلے اپنی فیس وصول کرتی ہے اور ایک سیاستدان فائدے پہنچانے کے سبز باغ دکھا کر ووٹ حاصل کرتا ہے۔ میں کبھی کسی طوائف اور سیاستدان سے لین دین کرنا سب سے بڑی حماقت سمجھتا ہوں۔ اس نے نیک بخت سے فون کا رابطہ ختم کیا، پھر لندن کے فون نمبر ڈائل کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد انیلا کی کھانسی اور کمزور سی آواز سنائی تھی۔ اس نے پوچھا، کون؟ حمزہ نے پوچھا، کیا تم میری آواز نہیں پہچان سکتی؟ وہ حیرانی سے بولی، تم حمزہ بول رہے ہو، تمہیں میرا یہ فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ امیر حمزہ نے کہا، نیک بخت نے یہ نمبر دیا ہے، تمہیں زندہ رکھ کر نیکی کر رہا ہے اور ہم 2 بچھڑوں کو ملانا چاہتا ہے، لیکن پہلے میں تصدیق کر رہا ہوں کہ میری انیلا زندہ ہے یا نہیں۔ وہ کھانستے ہوئے بولی، میں زندہ ہوں مگر یہ نہیں چاہتی کہ تم میری خاطر اپنا وطن چھوڑ دو اور دور رہ کر بھی وطن دشمن سیاستدانوں کا محاسبہ نہ کرو۔ امیر حمزہ نے کہا، تمہاری مسلسل کھانسی اور نقاہت زدہ آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ تم بیمار ہو، کیا اپنا علاج کروا رہی ہو؟ وہ بولی، ہاں، ایک ڈاکٹر صبح اور شام مجھے اٹینڈ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں موسم بدلنے کے باعث سردی، زکام اور کھانسی میں مبتلا ہو گئی ہوں، جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں گی۔ حمزہ نے کہا، انیلا، جب میں آخری بار اس خفیہ بنگلے سے رخصت ہو رہا تھا تو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ وہ بولی، اتنے دن گزر چکے ہیں، تم نے جو کچھ کہا وہ کیسے یاد رہے گا؟ امیر حمزہ نے کہا، محبت کرنے والی اپنے محبوب کے آخری فقرے اور اس کے پیار بھرے انداز کو یاد رکھتی ہے۔ وہ بولی، میں تو ہمیشہ تمہیں وش یو گڈ لک کہہ کر رخصت کیا کرتی تھی۔ حمزہ نے کہا، ٹھیک کہتی ہو، آخری رات میرے بدن پر شرٹ نہیں تھی، تمہیں یاد تو ہوگا کہ تم نے میرے سینے پر پیدائشی نشان دیکھ کر کیا کہا تھا۔ وہ بولی، تم ایسے سوالات کر رہے ہو جیسے
से मुझ पर शुबा हो? क्या मुझे पहचान नहीं रहे हो? हमजा ने कहा, तुम्हारी असल आवाज और लहजा खांसी और जुकाम के बायस बदल गया है, लेकिन जो तुम्हारे प्यार का अंदाज है वो तो कभी नहीं बदलेगा। वो बोली, मैं तुम्हारे सीने के पैदाइशी निशान पर हाथ फेरती और चूमती और सहरजदा सी होकर जाने क्या क्या कहती चली जाती। अमीर हमजा ने कहा, दुरुस्त है, सहरजदा होकर आलम मोहब्बत में लोग क्या कुछ कहते हैं। वो बातें पूरी तफसील से याद नहीं रहती, लेकिन मेरे सीने से लगने वाली अनीला, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मेरे सीने पर कोई पैदाइशी निशान नहीं है। वो परेशान होकर बोली, अब तो तुम खामखा मुझे उलझा रहे हो। यकीन करो, मैं ही तुम्हारी अनीला हूँ। क्या तुम्हें मेरी बीमारी का कोई ख्याल नहीं है? हमजा ने कहा, एक आखिरी सवाल करता हूँ, अपने खून का ग्रुप बताओ। वो बोली, बी नेगेटिव। हमजा ने कहा, बेशक तुम नेगेटिव हो और नेगेटिव ही रहोगी। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फिर नेक बख्त से राब्ता करने के बाद पूछा, अपनी सियासी मौत चाहते हो या जिस्मानी मौत? नेक बख्त ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या अनीला से तुम्हारी बात नहीं हुई? हमजा ने कहा, तुम्हारे फरिश्ते भी ये नहीं जान सकेंगे कि मैं अपनी अनीला को कैसे पहचान सकता हूँ। तुमने और खुफिया हाथ ने अपनी बहन को अनीला बनाकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। अब भी वक्त है, अपनी बेहतरी चाहते हो तो मेरी अनीला से बात करवाओ, वरना यही समझूंगा कि तुम्हारे जैसे कमीने ने उसे मार डाला। नेक बख्त ने फौरन ही फोन बंद कर दिया। मैंने पहली बार हमजा साहब को गुस्से में देखा था। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो होंठों को सख्ती से भींचकर गहरी गहरी सांस ले रहे थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो सांसों के जरिए एक दरिंदे की तरह गुर्रा कर नेक बख्त का लहू निचोड़ रहे हैं। उस वक्त उनसे तसल्लियों के रस्मी अल्फाज कहना मुनासिब नहीं था। वो बच्चे नहीं थे, उनके मुकाबले में मैं बच्चा था। मेरी अक्ल ने समझाया कि अभी उन्हें तन्हा छोड़ देना चाहिए। मैं वहां से दूसरे कमरे में आ गया। मैं फरमान अली ताबा अक्सर एक कैसेट रिकॉर्डर को ऑन करके अपनी जिंदगी के हालात रिकॉर्ड करता रहता था। मैं नहीं जानता कि ख्याली कहानियां कैसे लिखी जाती हैं, फिर ये कैसे जान सकता हूँ कि अपनी जिंदगी के सच्चे हालात किस तरह लिख पाऊंगा। मैंने ये जिम्मेदारी मुहय्युद्दीन साहब को दी ताकि वो मेरे कैसेट सुनकर मेरी दास्तान हयात फनकाराना महारत से यूं लिखें कि इस दास्तान की जहरीली सच्चाइयों के साथ जिंदगी के वो रंग नूर और दिलचस्पियां भी मिलती रहें जो हमारी अंधेर नगरी में कभी कभी जुगनू की तरह जलती बुझती रहती हैं और हमें उम्मीद दिलाती हैं कि हम जुगनू की नन्ही सी रोशनी से अपने मुल्क में एक नए आफताब की रोशनी फैला सकेंगे। इस मुल्क में सिर्फ एक फरमान अली नहीं जो करप्ट अनासिर को खत्म करके एक साफ सुथरा इस्लामी निजाम कायम करना चाहता हूँ। इस मुल्क में मुझसे भी बढ़कर अमीर हमजा और राजा नवाज जैसे नाकाबिल शिकस्त मुजाहिद हैं जो मेरी नजरों में हैं और मैं उनसे जिहाद के उसूल सीखता और तजुर्बात हासिल करता जा रहा हूँ। इनके अलावा आप सुनने वालों के दरमियान न जाने कितने अमीर हमजा और राजा नवाज होंगे जिनसे आइंदा मैं बहुत कुछ हासिल कर सकूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी दास्तान को तूल देने के लिए इन मुजाहिदीन के कारनामों को अपने नाम से मंसूब कर रहा हूँ। सियासतदान काशिफ अकबर और सूबाई लीडर रहमान चन्ना, उन दोनों के गले में नाजा और राजा नवाज हड्डियों की तरह अटके हुए थे। उन्होंने कराची से लेकर अंदरूनी सिंध के कई इलाकों में इन दो मोहब्बत करने वालों को कत्ल करना चाहा, लेकिन राजा नवाज उनके जरखरीद पुलिस वालों, डाकुओं और वडेरों को उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाता हुआ एक रिहाइश गाह में रूपोश रहने लगा। जब उसे और नाजा को तफरी करने या शॉपिंग वगैरह के लिए बाहर जाना होता तो वो आर्जी मेकअप के जरिए अपने चेहरों में थोड़ी सी तब्दीली करते। इस तरह बाहर आजादी से घूमते फिरते हुए भी दुश्मनों से महफूज रहते। काशिफ अकबर ने इस्लामाबाद से रहमान चन्ना को कहला भेजा था, तुम सिंध के सूबाई लीडर की हैसियत से नाकाम हो रहे हो। राजा नवाज ने कई अंदरूनी इलाकों में जरखरीद पुलिस वालों, डाकुओं और वडेरों को हलाक करके हमारा रोब और दबदबा खत्म कर दिया है। उन इलाकों से हमारे लिए कैसे वोट हासिल करोगे? वहाँ के लोग पुलिस, डाकुओं और वडेरों से पहले की तरह खौफजदा नहीं रहेंगे। पहले हम जबरन वोट लेते थे, अब कशकोल हाथ में लेकर जाएंगे तो धुतकारे जाएंगे और वो सब नेक बख्त की झोली में वोट डालेंगे। रहमान चन्ना ने कहा, राजा नवाज हमारी तवक्को से ज्यादा चालबाज और खतरनाक साबित हुआ है। हमने पुलिस, डाकुओं और वडेरों के जरिए उसका रास्ता रोकना छोड़ दिया है। सिर्फ ये देख रहे थे कि वो सिंध के अंदरूनी इलाकों से गुजरता हुआ कहाँ पहुँचेगा। हमारे आदमियों ने इत्तला दी है कि वो नाजा के साथ कराची वापस आ गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर उनका काम तमाम कर दूंगा। उनकी लाशें सड़कों पर या लावारिस मुर्दा खानों में पाई जाएंगी। रहमान चन्ना वाकई दूसरी चाल चल रहा था। अपने खास आदमियों को बड़ी राजदारी से नाजा और राजा नवाज के पीछे छोड़ रखा था। उन्हें ताकीद की थी कि कभी उनसे सामना न करें और न ही उनके मामलात में मुदाखलत करें। हत्ता कि वो दोनों कभी निशाने पर आए तो उन्हें गोली न मारें। अगर निशाना चूक जाए तो राजदारी नहीं रहेगी। रहमान चन्ना को यकीन था कि वो दोनों ज्यादा दिनों तक खाना बदोशों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटकते नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं अपना मुस्तकिल ठिकाना जरूर बनाएंगे। उसका ये यकीन दुरुस्त निकला। उसके जासूसों ने इत्तला दी कि वो दोनों अपने मुखालिफिन को
गुमराह करने के लिए दोबारा कराची आ गए हैं। फिर इत्तला मिली कि नाज़ा बीमार है। रहमान चन्ना ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए अस्पताल के एक डॉक्टर से मालूम किया। उसने बताया कि नाज़ा मां बनने वाली है। मेडिकल चेकअप से पता चला कि उसे सीने का कैंसर है। ये बीमारी पहले स्टेज पर है। बच्चे की पैदाइश से कबल मुसलसल इलाज होता रहेगा तो इस मोहलक बीमारी से निजात हासिल कर लेगी। उसे एक अस्पताल के स्पेशल वार्ड के एक कमरे में रखा गया था। ऐसे कुदरती हालात पेश आए थे कि उसके चेहरे पर आर्जी मेकअप हमेशा नहीं रह सकता था और चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तब्दील करने का वक्त नहीं रहा था। लिहाजा वो अपनी असल शक्ल सूरत के साथ अस्पताल के कमरे में थी। राजा नवाज आर्जी मेकअप के जरिए कई तरह के बहरूप में उसके पास अस्पताल में आ सकता था, लेकिन दुश्मन ऐसे भी नादान नहीं थे कि नाज़ा के पास दिन रात आने वाले को समझ न पाते कि वो राजा नवाज है। नाज़ा ने उससे कहा, मैं इसी शर्त पर अस्पताल में रहूंगी कि तुम मुझसे 1 मिनट के लिए भी मिलने नहीं आओगे। वो बोला, मोहब्बत ऐसी नहीं होती कि मैं बुरे वक्त में तुमसे मुंह छुपा कर रहूं। नाज़ा ने कहा, तुम मुझसे नहीं दुश्मनों से मुंह छुपाओगे और फोन के जरिए मेरी खैरियत मालूम करते रहोगे। वो बोला, नाज़ा सिर्फ खैरियत मालूम करने से बात नहीं बनेगी, तुम्हारे पास दवाएं पहुंचाने, एक्सरे करवाने और मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट करवाते रहने के लिए मेरी मौजूदगी लाजमी है। वो बोली, ये सारे काम तुम्हारा कोई जांबाज भी कर सकता है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मैं अपनी जान की कसम देती हूँ, अस्पताल में कभी किसी भेस में भी ना आओगे तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। अपने और तुम्हारे बच्चे की मां बनने से पहले ही मर जाऊंगी। एक जांबाज ने भी कहा, ये दुरुस्त कह रही हैं, आप दूर रहकर इनकी निगरानी भी कर सकते हैं और दुश्मन आपको अस्पताल में कभी न पाकर खौफजदा रहेंगे कि उन्होंने मैडम नाज़ा को नुकसान पहुंचाया तो आप उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालात का तकाजा यही था कि उसे जज्बात से नहीं हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। नाज़ा से दूर रहकर उसकी हिफाजत करनी चाहिए। उसने एक ही दिन में अस्पताल से करीब एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। फिर वहां रहकर दूर ही दूर से ये ताड़ने लगा कि अस्पताल के अंदर जाने वालों में कितने दुश्मन हो सकते हैं। अयादत करने वालों और दुश्मन बनकर आने वालों के अंदाज में ऐसा नामालूम सा राजदाराना फर्क होता है जिसे ताड़ने वाली नजरें ही समझ सकती हैं। राजा नवाज भी किसी दुश्मन को पहचान सकता था। अस्पताल में सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम के वक्त अयादत करने वालों को आने की इजाजत दी जाती थी। आने जाने वालों की भीड़ सिर्फ 2 घंटे तक रहती थी। सिर्फ स्पेशल वार्ड के कमरे में मरीज या मरीजा के साथ किसी एक तीमारदार अजीज को रहने की इजाजत दी जाती थी। नाज़ा के कमरे में दिन में एक जांबाज रहता था और रात को दूसरा जांबाज आया करता था और राजा नवाज फोन के जरिए नाज़ा की खैरियत मालूम करता रहता। रहमान चन्ना अपनी चाल चल रहा था। उसने नाज़ा के बराबर वाले कमरे में एक औरत को मरीजा बनाकर भेज दिया। वो मरीजा बनने वाली औरत 2 कत्ल के इल्जाम से निजात पाना चाहती थी, इसलिए एक आलाकार बनकर उस कमरे में आ गई। उसके साथ एक और कातिल उसका शौहर और तीमारदार बनकर आया। रहमान चन्ना उन दोनों कातिलों की सरपरस्ती कर रहा था और उन्हें कानून की गिरफ्त से बचाता रहा था। राजा नवाज की ये तदबीर कमजोर रही कि वो अस्पताल के करीब मकान किराए पर लेकर नाज़ा की निगरानी कर सकेगा। नाज़ा के कातिल तो उसके पड़ोसी बनकर आ गए थे और ये ताड़ने की कोशिश कर रहे थे कि नाज़ा के पास तीमारदारी के लिए आने वाले 2 आदमियों में कौन राजा नवाज है जो भेस बदल कर आता है। रहमान चन्ना ने दोनों आलाकार से कहा, अकल से काम लो। जो शख्स रात को नाज़ा के पास तीमारदारी के लिए रहता है वही उसका यार राजा नवाज है। नाज़ा किसी गैर के साथ रात को नहीं रहेगी। नाज़ा की पड़ोसन मरीजा ने कहा, हाँ, औरत अपने मर्द के साथ ही रात को रहती है। हम आज आधी रात के बाद उन्हें कत्ल कर देंगे। चन्ना बोला, हो सके तो सिर्फ नाज़ा को कत्ल करो। राजा नवाज को जख्मी करके कैदी बनाकर ले आओ। अस्पताल के आगे पीछे हमारी कई गाड़ियां और मातहत होंगे, तुम किसी भी गाड़ी में आ सकोगे। वो दोनों अपने अपने रिवॉल्वर में साइलेंसर लगाकर रात के 2 बजे तक मोबाइल फोन के जरिए अस्पताल की गाड़ी वालों से राब्ता कायम करते रहे। दूसरी तरफ से पूछा गया, इतनी देर क्यों की जा रही है? उस औरत ने कहा, नाज़ा और राजा नवाज मियाँ बीवी हैं। उन्होंने रात के वक्त दरवाजे को अंदर से बंद किया होगा। दरवाजे पर दस्तक देकर जाने का मतलब है उन्हें होशियार किया जाए। दूसरी तरफ से कहा गया, फिर तो वो दरवाजा सुबह तक बंद रहेगा। औरत बोली, कोई जरूरी नहीं है। नाज़ा अचानक किसी तकलीफ में मुब्तला हो सकती है या किसी और जरूरत के तहत राजा नवाज दरवाजा खोलकर थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता है। ऐसे वक्त में हम दोनों उन दोनों से निमट लेंगे। आधी रात गुजरने के बाद साथ वाले कमरे में खामोशी रही और किसी जरूरत के तहत दरवाजा नहीं खुला। इंतजार करने वाले बेजार होते रहे। रहमान चन्ना ने सख्ती से ताकीद की थी कि इसमें जरा सी भी उजलत से काम न लिया जाए। ये काम आज ना हो सके उसे कल किया जाए। राजा नवाज बहुत शातिर है, इस बार बच निकलेगा तो उसके खिलाफ कयामत बर्पा कर देगा। इस हुक्म के मुताबिक इंतजार करने वाले सब्र कर रहे थे मगर बेजार हो रहे थे। रात के 2 बजे साथ वाले कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उस कातिल औरत के साथी ने रोशनदान से झांक कर देखा। जिसे राजा नवाज समझा जा रहा था वो हाथ में थर्मस लेकर जा रहा था।
नाज़ा को नींद नहीं आ रही थी, वो चाय पीना चाहती थी, इसलिए साथ रहने वाला वो जांबाज थर्मस लेकर अस्पताल की कैंटीन की तरफ जा रहा था। बस यही मौका था। वो रोशनदान के पास मेज से उतरकर दरवाजा खोलकर उसके पीछे गया। औरत ने उस कमरे से निकलकर नाज़ा के कमरे का दरवाजा खोलते ही फायरिंग शुरू कर दी। वो बिस्तर पर बैठी हुई थी, उसके पास भी तकिए के नीचे पिस्तौल था, लेकिन जब कज़ा आती है तो जीने की अदा नहीं होती। उसे अपने पिस्तौल तक पहुंचने का मौका न मिला। उस कातिला ने जैसे सांस लिए बगैर कई फायर किए, कई गोलियां उसके जिस्म में उतार दी। फिर वो वहां से दौड़ते हुए कॉरिडोर में आई। वहां कॉरिडोर के एक मोड़ पर उसके साथी ने पीछे से जांबाज पर फायर किया था। उस बेचारे को भी संभलने का मौका न मिला। वो जवाबी फायर करने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालते ही कातिल की तरफ पलटा, लेकिन इतनी देर में कातिल ने 2 फायर करके उसके जिस्म में गोलियां उतार दी। तीसरे फायर में उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा दिया। फिर अपने रिवॉल्वर की बाकी गोलियां भी उसके जिस्म में पेवस्त कर दी। उसके बाद अपने साथी औरत के साथ भागता हुआ अस्पताल से बाहर जाने लगा। बाहर राजा नवाज दूर से छुपकर निगरानी करता रहता था। दुश्मनों की गाड़ियां अस्पताल के अहाते में दूसरी गाड़ियों के साथ खड़ी रहती थीं, इसलिए उन गाड़ियों पर शुबा नहीं हुआ। जब उसने एक औरत और मर्द को दौड़ते हुए अस्पताल से निकलते हुए देखा तो चौंक गया। उनके हाथों में साइलेंसर लगे रिवॉल्वर थे। अहाते में खड़ी हुई एक गाड़ी का दरवाजा खुल गया था। उसमें से एक शख्स निकलकर उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। राजा नवाज ने उन्हें देखते ही पहले मर्द पर फायर किया। वो बचकर आगे निकल गया। गोली औरत को लगी, वो चीख मार कर गिर पड़ी। राजा नवाज उछलकर अहाते की दीवार पर आया। गाड़ी से निकलकर इशारा करने वाला निशाने पर था, उसे गोली लगी। जांबाज के कातिल ने गाड़ी की आड़ लेकर इधर उधर देखा। उसी वक्त गाड़ी के पहिए का टायर जोरदार धमाके से बरस्ट हुआ। वो उछलकर दूर जा गिरा। जिस गाड़ी में वो फरार हो सकता था उसे राजा नवाज ने नाकारा कर दिया था। वो बौखला कर जमीन से उठते हुए दूसरी गाड़ी के पीछे छुपना चाहता था, लेकिन पसली में गोली लगते ही कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाजें अस्पताल के सामने वाले अहाते में भी गई थीं। वहां खड़ी हुई एक गाड़ी में रहमान चन्ना के 2 हवारी थे। उन्होंने फौरन उसे स्टार्ट किया। तेजी से ड्राइव करते हुए अहाते के बाहर आकर अस्पताल के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगे। राजा नवाज अहाते की दीवार से कूदकर तेजी से चलता हुआ उस कातिल के पास आया। उसमें अभी जान बाकी थी। राजा नवाज ने पूछा, क्या रहमान चन्ना ने तुम्हें भेजा है? सच बोलोगे तो अभी तिब्बी इमदाद मिलेगी और मौत से जिंदगी की तरफ लौट आओगे। जवाब देने में देर करोगे तो मैं एक गोली और मार दूंगा। वो उखड़ती हुई सांसों के दरमियान बोला, हाँ चन्ना साहब ने। उसकी बात पूरी होने से पहले दूसरी गाड़ी उस पिछले अहाते में दाखिल हुई। उसके दरवाजे खुले। उन्होंने राजा नवाज को देखते ही फायर किया, लेकिन जवाबी फायर के नतीजे में मारा गया। दूसरा गाड़ी लेकर भागने लगा। राजा नवाज ने उसकी गाड़ी के पहिए को भी बेकार करना चाहा। कई फायर किए, लेकिन वो गाड़ी अहाते से तेजी से निकलती चली गई। आखिरी दुश्मन बचकर निकल गया। वो दौड़ता हुआ अस्पताल के अंदर जाने लगा। फायरिंग की आवाजों पर जूनियर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, नर्सें और वार्ड बॉयज सहम गए थे। अस्पताल के अंदर ही एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ऐसे वक्त उन्होंने कॉरिडोर में जांबाज की लाश देखी। उसे देखते ही जूनियर डॉक्टर्स ने कहा, ये स्पेशल वार्ड के कमरा नंबर 2 की मरीजा के साथ रहता था। एक नर्स पुलिस को फोन करने लगी। बाकी सब कमरा नंबर 2 की तरफ दौड़ते हुए आए तो दरवाजा खुला हुआ था और नाज़ा खून से लथपथ बेजान दिखाई दे रही थी। उस वक्त राजा नवाज भी दौड़ता हुआ आया। फिर नाज़ा को देखते ही उस पर सख्तातारी हो गया। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट कर गिर पड़ा। डॉक्टर वगैरह रिवॉल्वर देखते ही सहम कर दूर हो गए। मोबाइल फोन के बजर की आवाज ने राजा नवाज को चौंका दिया। उसने उसे ऑन करके कान से लगाकर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से एक जांबाज ने कहा, सर एक खुशखबरी है, जनाब अमीर हमजा कराची आ गए हैं, आपको पूछ रहे हैं। वो हारे हुए जुआरी के अंदाज में बोला, हमजा को ये खबर सुना दो कि उसके यार की शरीके हयात नाज़ा को अभी अस्पताल में कत्ल कर दिया गया है। जांबाज बोला, ओ गॉड, आप कहाँ हैं? राजा नवाज बोला, अस्पताल में हूँ, अपनी जान से ज्यादा अजीज का आखिरी दीदार कर रहा हूँ। जांबाज ने कहा, सर काशिफ अकबर और रहमान चन्ना अपनी साजिश में कामयाब हो चुके हैं, उन्हें मजीद कामयाब नहीं होने देंगे, फौरन वहाँ से निकल जाएंगे। आपके खिलाफ FIR दर्ज है कि आपने नाज़ा को अगवा किया है। अब आप पर उसके कत्ल का भी इल्जाम लगाया जाएगा। प्लीज आप फौरन वहाँ से निकल जाएं। राजा नवाज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फोन बंद करके नाज़ा के करीब आया, फिर उसकी पेशानी को चूम कर उसकी खून आलूदा लाश से लिपट गया।
دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پھر وہ کمرے کے دروازے پر رک گئیں۔ پولیس والے آ گئے تھے۔ انسپکٹر نے اپنی جیب سے رومال نکال کر راجہ نواز کے فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کو اٹھا لیا، پھر کہا، راجہ نواز، آخر قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ ہم یہاں پچھلی 2 راتوں سے چھپے ہوئے تھے، ابھی ہم بار بار ہونے والی فائرنگ کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ چنّا صاحب نے کہا تھا تم پیچیدہ چال چلو گے اور ہمیشہ کی طرح بچ نکلو گے، اور میں نے دعویٰ کیا تھا کہ تم یہاں فائرنگ کے نتیجے میں مرو گے یا پھر ہمارے شکنجے میں آؤ گے۔ راجہ نواز کے موبائل سے بزر کی آواز آنے لگی۔ سپاہیوں نے قریب آ کر اسے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ انسپکٹر نے اس کی جیب سے موبائل نکال کر آن کیا، پھر اسے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے امیر حمزہ کی آواز سنائی دی، میں کوئی بھی ہو سکتا ہوں، جس کا فون ہے اسے بات کرنے دو۔ پولیس والا بولا، سوری، راجہ نواز پولیس کی حراست میں ہے، میں انسپکٹر رانا سجاد بول رہا ہوں، تمہیں جو کہنا ہے وہ ڈیفنس کے تھانے میں آ کر کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر اسی موبائل فون کے ذریعے رحمان چنّا سے رابطہ کر کے بولا، چنّا صاحب، میں انعام کا حقدار ہو گیا ہوں، راجہ نواز میری حراست میں ہے اور میں اسے تھانے لے جا رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رحمان چنّا نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ تم نے راجہ نواز کو گرفتار کر لیا ہے، پہاڑ کو زنجیر پہنائی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، نازا کہاں ہے؟ وہ بولا، وہ مر چکی ہے، ہم نے اسی کے قتل کے الزام میں راجہ نواز کو گرفتار کیا ہے۔ چنّا بولا، میں یقین کرنے کے لیے تھانے آ سکتا ہوں مگر بہت رات ہو چکی ہے، صبح آ کر اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں گا، فی الحال یقین کرنے کے لیے اپنے سیکرٹری کو بھیج رہا ہوں۔ انسپکٹر نے کہا، بے شک آپ پہلے اچھی طرح یقین کر لیں، انعام تو آپ مجھے ضرور دیں گے، میں ابھی 15 منٹ میں تھانے پہنچ جاؤں گا۔ چنّا بولا، نازا کے وڈیرے باپ اور بھائی کو فون کرو تاکہ وہ فوراً اسپتال میں آ کر اپنی بیٹی کو مردہ اور اس کے قاتل کو زندہ تمہاری گرفت میں دیکھ کر راجہ نواز کے خلاف ٹھوس گواہ بن جائیں۔ انسپکٹر بولا، جناب عالی، میں ابھی انہیں فون پر اطلاع دے رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے وڈیرے کمال سولے سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں انسپکٹر رانا سجاد بول رہا ہوں، آپ کے لیے ایک دردناک خبر ہے، راجہ نواز نے آپ کی بیٹی نازا کو اسپتال میں قتل کر دیا ہے، قاتل ہماری حراست میں ہے، آپ یہاں آئیں تاکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جا سکے، ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پوسٹ مارٹم کے بعد آئیں گے تو بیٹی کی لاش آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ وہ فون بند کر کے جونیئر ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر اور نرسوں کے تحریری بیانات ان کے دستخط کے ساتھ لینے لگا۔ لاش کو اسی اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں 4 بج گئے۔ وڈیرا کمال سولے اور اس کا بیٹا جمال سولے وہاں آئے، وہ دونوں نازا کی لاش دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ راجہ نواز کو گالیاں دینے لگے، وہ گرج کر بولا، ایک کے بعد دوسری گالی نکالی تو تم دونوں کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دوں گا، یہ نہ سمجھنا کہ میں پولیس کی حراست میں گالیاں سن کر خاموشی سے سر جھکا لوں گا، یہاں کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے کہ میں نے نازا کا قتل کیا ہے۔ رحمان چنّا نے تم باپ بیٹے کو الو بنا کر اپنے آدمیوں کے ذریعے میری نازا کو قتل کروایا ہے، اب بھی وہ زندہ نہیں رہے گا۔ انسپکٹر نے باپ بیٹے سے کہا، آپ اس کے منہ نہ لگیں، نازا کی لاش لے جائیں، ہم قاتل سے نمٹ لیں گے۔ وہ راجہ نواز کو ہتھ کڑیاں پہنا کر اسپتال سے باہر آئے، پھر اسے پولیس وین میں بٹھا کر ڈیفنس تھانے کی طرف جانے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے